Hello, students. How are you? I hope that you have learned, you have read the first part of Unit 2 Man's Relationship with Animals. In previous lecture, you have studied how Perry and Joseph they are related with each other. You have seen the bonding between these two, between the man and the animal. Okay, the animal is a smart horse, and he is named Joseph by Perry. Perry is a milk wagon driver, and he is working for the milk company for 30 years. Okay, this is a story set up in Canada, and the city's name is Montreal, and the milk wagon driver Perry and the horse Joseph, they delivered milk in Prince Edward Street, which is very wide and big street of Montreal. Okay, and when Joseph joined this milk company at that time, he was a horse only, white horse only, but Perry named him Joseph after a famous Saint Joseph's name, and the saint was very kind and gentle. Okay, within a year, Joseph knew the milk route, and they both supplied the milk very nicely without any complaint, without any mistakes. Okay, how they delivered milk, all the things you have studied in the previous part. One day when Perry arrived at the milk company, the foreman of the stables, Jax, he observed that Perry is getting old, and he talks to the manager of the company that now Perry should get retirement. Okay, manager agreed, and he assured that Perry would get the salary just the same way as he is getting right now. And but Perry refused to retire because he could not bear the thought of getting separated from Joseph, his horse. He said Jax that they were two old men, Joseph and he, and they will they will take retirement together only. When Joseph is ready to retire, he will also leave. Okay, now students, let's start the next part. Jax, who was a kind man, understood. Jax was a kind man. He understood the bonding between these two. There was something about Perry and Joseph which made a man smile tenderly. Tenderly means with kindness, बहुत ही softly. Okay, and he understood this bonding, and he also understood that there is something between Perry and Joseph. Okay, it was as though each drew some hidden strength from the other, and the bonding was so strong that it seems that they are getting some hidden strength from each other. When Perry was sitting in his seat, and when Joseph was hitched to the wagon, neither seemed old. But when they were together, neither seemed old. पेरी भी ओल्ड नहीं दिखता था, जोसेफ भी ओल्ड नहीं दिखता था जब वो लोग दोनों साथ में काम करते थे. But when they finished their work, Perry would limp down the street, seeming very old. But after finishing the work, Perry would limp down the street. Perry धीरे से street में उतरता, धीरे धीरे चलता, and seeming very old indeed. और वो बहुत ही old भी दिखाई देता था. ओके, क्योंकि वो उसे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. Limp down means walking with difficulty. The horse head would also drop, and he would walk very wearily to his stall. अब देखो, जोसेफ है, वो भी थक गया था, वो भी ओल्ड हो रहा था. ओके, सो हॉर्स हेड वॉज ऑल्सो ड्रॉप. वो भी अपना सर एकदम नीचे करके थका हुआ सा बहुत ही धीरे धीरे अपने स्टॉल की तरफ बढ़ता था.
Then one morning Jax had a dreadful news for Perry. एक दिन जैक्स जैक्स ने पेरी को बहुत ही ड्रेडफुल यानी डरावना कुछ न्यूज़ दिया. ही सेड पेरी जोसेफ डिड नॉट वेक दिस मॉर्निंग. बहुत ही डरावना न्यूज़ था ये पेरी के लिए. उसने क्या कहा जैक्स ने. जैक्स कौन था. वो सब वहाँ पर देख रेख करता था ना टेबल में. तो वो आया और उसने पेरी को क्या कहा. व्हाट डिड ही से. पेरी जोसेफ डिड नॉट वेक दिस मॉर्निंग. पेरी जोसेफ नहीं उठाया आज. ही वॉज वेरी ओल्ड पेरी. वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था. यू नो ही वॉज 25 ईयर्स की एज थी उसकी. दैट इज़ लाइक 75 फॉर मैन. ओके. और जैसे 75 ईयर्स होते हैं इंसान को, वैसे हुए हॉर्सेस को 25 ईयर्स में वो लोग ओल्ड हो जाते हैं. येस पेरी सेड स्लोली आई एम 75. नाउ आई शैल नेवर सी हिम अगेन माई पुअर जोसेफ. यानी कि जोसेफ अब इस दुनिया में नहीं रहा. ही वॉज डेड. So Perry said slowly, yes, I know, I am also 75. Now I shall never see him again, my poor Joseph. Jax patted Perry on the shoulder. We will find another horse just as good as Joseph. अब किसी को दिलासा दिलवाते हैं ना, कॉन्डोलेशन देते हैं, उसी तरह से जैक्स ने पेरी के शोल्डर को पैट किया और उसे क्या कहा कि वी विल फाइंड अनदर हॉर्स एज स्मार्ट एज क्लेवर एज जोसेफ. वाई इन अ मंथ्स टाइम यू विल टीच him your route. कि within 1 month time only you can teach the route. We will. He was talking continuously then, but he stopped when he looked into Perry's eyes. But at that time, while talking with Perry, Jack stopped. He looked into Perry's eyes. For years, Perry had worn a heavy cap, the peak of which came low over his eyes. For the first time, he looked into Perry's eyes. Why? Because for this many years, Perry used to wear a heavy cap, and the peak of the cap came low over his eyes. वो कैप की जो पिक था वो उसकी आइज पे आता था. नाउ व्हेन जैक्स लुक्ड इनटू पेरीज आइज, और जैक्स ने अब पेरी की आंखों में देखा. ही सो समथिंग विच स्टार्टल्ड हिम. उसने कुछ ऐसा देखा कि उसे लगा कि कुछ अलग है. ओके क्या अलग है. ही सो अ डेड लाइफलेस लुक इन दैम. देखा होगा आप लोगों ने भी, किसी किसी की आइज़ में है, हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बेजान सी आँखें हैं, उसमें कुछ जान ही नहीं है. ओके द आइज़ वेर मिररिंग द ग्रीफ दैट वॉज इन पेरीज हार्ट. पेरी वॉज इन पेरी है वो बहुत ही दुखी था. ही वॉज वेरी सैड बिकॉज ऑफ द डिमाइज, बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ जोसेफ. सो द आइज़ वर मिररिंग, यानी कि आँखों में उसका दुख झलक रहा था जो उसके हार्ट में था जोसेफ के लिए. एंड इन हिज सोल, जो उसकी आत्मा फील कर रही थी, उसकी सोल जो फील कर रही थी जोसेफ की डेथ पर, वो सारा दुख दर्द उसकी आँखों में दिख रहा था. इट वॉज एज दो हिज हार्ट एंड सोल हैड डाइड. और वो ऐसे दिख रहा था कि उसका हार्ट और सोल भी मर गए हैं. टेक डे टुडे ऑफ पेरी, जैक्स सेड. क्या कहा जैक्स ने कि आज का दिन तुम ऑफ ले लो, यानी कि छुट्टी रखो. बट बिफोर जैक्स कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस, पेरी वॉज ऑलरेडी लिम्पिंग डाउन द स्ट्रीट. He was just continuing the conversation, but in between, Perry started walking with difficulty in the street. Tears were streaming down his cheeks and he was sobbing. वो रोए जा रहा था. उसकी आँखों में से आंसू हैं वो चिक्स पर आ रहे थे, गाल पर आ रहे थे, और वो रोए जा रहा था. There was a warning yell from the driver of a huge truck that was coming fast, and there was the scream of brakes. Students, now see what happened. There was a warning bell, warning yell, यानी कि कुछ वार्निंग देता हुआ कुछ आवाज़ हुआ. बहुत बड़ी ट्रक थी, उसके ड्राइवर ने आवाज़ की वार्निंग देने के लिए. पेरी जो स्ट्रीट पे चल रहा था ना वहाँ पर, और लेकिन वो ट्रक बहुत ही फास्ट थी, स्पीड ज़्यादा थी उसकी. एंड देयर वॉज द स्क्रीम ऑफ ब्रेक्स. द ट्रक ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक्स एंड देयर वॉज स्क्रीम ऑफ ब्रेक्स.
but it appeared that Perry had heard neither. लेकिन ऐसा लग रहा था कि पेरी को वो सुनाई नहीं दे रहा था. 5 minutes later, an ambulance doctor said he's dead. See, Joseph, the horse, died in the morning. Jax gave the news to Perry, and after getting the sad news, Perry started to walk on the street, and he got an accident, and the doctor declared him dead. Jax and several of the milk wagon drivers had arrived by then. Okay. आवाज़ सुन के, ब्रेक्स की आवाज़ सुन के जैक्सन और भी दूसरे मिल्क वैगन ड्राइवर्स थे ना वहाँ पर, दे ऑल हैड अराइव्ड देयर. दे लुक डाउन एट द स्टिल फिगर मीन्स उसकी डेड बॉडी जो पड़ी थी उसको देखा सबने. आई कुडंट हेल्प इट, द ड्राइवर ऑफ द ट्रक प्रोटेस्टेड. अब जो ट्रक ड्राइवर है वो भी नीचे उतरा, उसने भी कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया. ही वॉकड राइट इन टू माई ट्रक, वो सीधा सीधा मेरे ट्रक की तरफ ही चला आ रहा था. ही नेवर सो इट आई गेस, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसे दिखाई नहीं दे रहा था. ही वॉकड इन टू एज दो ही वॉर ब्लाइंड, वो इस तरह से चल रहा था जैसे कि वो ब्लाइंड है. द एम्बुलेंस डॉक्टर बेंट डाउन ब्लाइंड, ही सेड लुकिंग इन टू पियरीज आइज. जो एम्बुलेंस डॉक्टर है जिन्होंने उन्हें डेड डिक्लेयर किया था वो नीचे झुके और उन्होंने क्या कहा, ब्लाइंड. फिर उसकी आंखों में देखा, पियरी की आंखों में देखा. ऑफ कोर्स द मैन वॉज ब्लाइंड, ऑफ कोर्स ये इंसान ब्लाइंड ही था. सी दोज कैटरेक्ट्स, कैटरेक्ट्स हैं वो क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आंखों का जो लेंस है ना वो ओपेक हो जाता है, यानी लेंस है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं ना, उसे बोलते हैं इंग्लिश में कैटरेक्ट्स. ओके. तो डॉक्टर क्या, उन्होंने क्या डायग्नोस किया कि यस द मैन वॉज ब्लाइंड एंड सी दोज कैटरेक्ट्स, उसकी दोनों आंखों में कैटरेक्ट्स हैं. दिस मैन हैज़ बिन ब्लाइंड फॉर 5 years. सी, 5 साल से ये इंसान ब्लाइंड है. Then he turned to Jax and said, You say he worked for you. Didn't you know he was blind? फिर वो जैक्स की तरफ मुड़ा और उन्होंने क्या कहा डॉक्टर ने कि आप बोल रहे हो कि ये इंसान आपके लिए काम करता था, तो आपको नहीं पता कि वो ब्लाइंड था. नो नो, जैक्स सेड सॉफ्टली, नन ऑफ अस न्यू. नहीं नहीं, जैक्स ने सॉफ्टली कहा, हम लोगों में से किसी को पता नहीं था. देर वॉज ओनली वन हु न्यू, अ फ्रेंड ऑफ हीज नेम्ड जोसेफ. सिर्फ एक ही इंसान था जिसे पता था और उसका नाम है जोसेफ. इट वॉज अ सीक्रेट आई थिंक जस्ट बिटवीन दोज टू. और वो क्या बोल रहे हैं कि ये एक सीक्रेट था, जोसेफ है वो उसका फ्रेंड था, और ये एक सीक्रेट था कि वो 5 साल से ब्लाइंड था, और यही सीक्रेट ये दोनों जने शेयर कर रहे थे, और ये सीक्रेट इन दोनों के बीच ही रह गया. दोनों एक साथ एक ही दिन उनको डेथ मिल गई. सी द फ्रेंडशिप, सी द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द एनिमल्स. Perry and Joseph, they both died on the same day, and Perry was blind for last 5 years. Then also it was a secret for other milk wagon drivers, for the manager and Jax. They didn't know that Perry was blind because Joseph was that much of trained horse that he never gave the chance for others to observe all these things. Okay. आप लोगों ने भी बच्चे देखा होगा कि अगर किसी के घर पे पेट एनिमल है, सपोज डॉग है, ज़्यादातर डॉग हैं वो इंसान के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशंस रखते हैं. अगर उनका मालिक है वो डेथ हो जाती है या बीमार हो जाता है या वो कहीं चले जाते हैं, तो वो पेट एनिमल है, उनके बिहेवियर से पता चल जाता है कि वो बहुत ही सैड है. ओके. तो हियर ऑल्सो आफ्टर द डेथ ऑफ जोसेफ, Perry also died. So this was all about this story. I hope you all enjoyed this story. Okay, read the story, read each and every word and try to understand. Okay, let me explain the glossary, which word meanings. Okay, you will write this word meanings. Students, let's start with the glossary word meanings. You have to write this word meanings
in the beginning of this chapter. Okay, let's start. The first word is stroked. Stroked means petted, thapthapana. Gentle, mild, reins, long narrow straps of the bridle. यानी कि हॉर्स की जो कंट्रोल में करने के लिए जो कुछ होता है ना, उसे बोलते हैं रेंस. स्टेबल, अ शेड टू कीप हॉर्सेस इन, हॉर्सेस को रखने की जगह. हिच्ड टू यानी फास्टन विथ अ रॉप और हार्नेस्ड, यानी कि कोई भी एनिमल है उसे फास्ट स्पीड उसकी बढ़ाने के लिए जो रस्सी को खींचा जाता है ना वो. स्टॉल्क डाउन मतलब कि वॉक डाउन टू, स्किप टू, ओमिट लीव करना. ओके. टू बोस्ट यानी टू स्पीक इन एक्सेसिवली प्राउड टर्म्स, यानी कि बहुत बढ़ाई करना. वॉलरस मुस्टाच मतलब कि लॉन्ग थिक मुस्टाच, बहुत ही लॉन्ग और थिक मूछें. गाउट, अ डिजीज रिलेटेड टू द नीज. चकल, सप्रेस्ड लाफ यानी कि दबी हुई हंसी. वेयर आउट, टायर और गेट एग्जॉस्टेड, थका हुआ. टेंडरली यानी सॉफ्टली लविंगली. वेरीली यानी कि टायर्डली. टेक टुडे ऑफ मीन्स टेक अ लीव. ड्रेडफुल मीन्स कॉजिंग ग्रेट फियर और एंग्जाइटी, बहुत ही एंग्जियस हो जाना, बहुत ही डर लगना. टू सोब, टू क्राई फ्रॉम पेन, ड्रॉइंग इन ब्रीथ शार्पली. ओके, जब हम लोग बहुत ही दुखी होते हैं तो सांसों में उसकी आवाज़ आती है ना रोने की, वो. वार्निंग येल यानी अ शार्प लाउड क्राई यानी कि हॉर्न. सिग्नलिंग पॉसिबल डेंजर यानी डेंजर है ऐसा बताने के लिए हॉर्न बजाना, जो ट्रक ड्राइवर ने बजाई थी ना वो. स्क्रीम यानी स्क्रीच, चिल्लाना. लिम्पिंग डाउन मीन्स वॉकिंग विद डिफ़िकल्टी. ओके, चलने में प्रॉब्लम होना. कैटरेक्ट्स, अ मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंसेज ऑफ आइज बिकम ओपेक, यानी कि मोतिया हो जाना. ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें आँखों से ठीक से दिखाई नहीं देता क्योंकि लेंसेज हैं आइज़ के, वो ओपेक हो जाते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वर्ड मीनिंग्स. Okay, you have to learn the word meanings, write down in your notebook. Rest of the things I will give you in notes. Okay, we will meet in next lecture.